Hello everyone. So today we are going to discuss about the current affairs news from the for the environment topic. And first news from the April month of April is the anti-smog guns installed at 14 large project sites in the capital. So Delhi has installed 14 anti-smog guns. So mostly they are working in the mode like nebulize water droplets into the air through the high pressure propellers, so which helps to dust particles settle down. So because of these anti smog guns, definitely यहाँ पे जो स्मोक पोल्यूशन है या स्मोक जो ज्यादातर इम्पैक्ट्स होते हैं दिल्ली पे सबसे ज्यादा, तो उसको रेगुलाइज करने के लिए या पार्टिकल सेटल डाउन करने के लिए स्मोक गन बहुत बेनिफिशियल हो गए. सो इनिशियली अभी ये 14 इंस्टॉल हुए यहाँ पे. सो उसके रिलेटेड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है. तो let's see what is it. So it is an anti-smog gun. That device is spray nebulized water droplets into the atmosphere to reduce air pollution. So it connects to the water tank and mounted on a vehicle. The device could be taken across the city, spray water to settle dust and other suspended particles. So mostly the spray water up to the height of 50 meter. So they spread up to the 50-meter side, and results were positive as spray acts like a rain and settle dust particles and also PM 2.5. So जब द हिंदू में ये न्यूज है तो वहां पे ओनली डस्ट पार्टिकल्स मेंशन्ड है, बट रिमेंबर वन थिंग कि इट विल सेटल डाउन द पीएम पार्टिकल्स आल्सो, मींस पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये भी यहाँ पे सेटल डाउन हो गए. एंड नेक्स्ट इज द कि क्या नीड है इसकी. यस डेफिनेटली बिकॉज एयर क्वालिटी, एज यू नो कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही सीवियर लेवल पे होता है, हजार्डस लेवल पे होता है. सो सीवियर कैटेगरी में लास्ट अक्टूबर में वगैरह देखा गया था यहाँ पे. सो इन द मोस्टली इन द विंटर कंडीशन ये बेनिफिशियल होगा टू सेटल डाउन द डस्ट इशू एंड पार्टिकुलेट मैटर इशू. So need of the hour is the fragmented policies. Toothless environmental bodies won't help. So the center and state will have to work jointly and quickly. So different methods हमको work करना पड़ेगा दिल्ली के लिए या some of the ऐसे regions के लिए कि जहाँ पे ये smog issue होगा, particulate matter, air pollution, comprehensively जो भी issues होंगे तो different way से हमें tackle करना पड़ेगा. So one of that is the yes, that is anti-smog guns. So another thing is that is smog tower in Delhi also, that is different from the anti-smog guns. So we will see after this part, because anti-smog के लिए थोड़ा सा और देखना है आपको. Anti-smog gun cannot shape device that spray water in the form of the mist in the air and can be attached with a water tank on a movable vehicle to be taken at different areas. So these status approved by the Delhi Pollution Control Board and CPCB, Central Pollution Control Board. So these are the some important factors other than some static part. So ये आपको just overlook करना है यहाँ पे. And next is the smog tower in Delhi. So ये थोड़ा पुराना अक्टूबर नवंबर की बात है. So smog tower is different from the anti smog guns. So smog tower is the static one. ये कोई vehicle पे installed नहीं होगा. And generally यहाँ पे क्या होगा कि nearby almost up to 750 meters circumstances जो circumference area हो गए, नियर बाय डायमीटर अगर 750 मीटर का देखते हो तो वो एरिया में ये क्या करेगा कि जितना भी एयर पोल्यूशन है यहाँ पे कम करेगा. सो लेट्स सी व्हाट इज स्मॉग टावर्स. So smog tower is being planned for the national capital region NCR Delhi to clear air zone, and the smog tower one of the device to control the air pollution. So reduce particulate matters by 50%. So it will reduce the particulate matter by 50%. And the filter installed carbon nanofibers and major components इसमें installed हो गए. The proposed smog tower is focused only on reducing particulate matter load at the present. Mostly particulate matters पे ये focus करेगा, not other like carbon monoxide अगर इसको वो levels पे इतना purify नहीं कर सकता है. Just it is for the particulate matters. Air pollution severe level पे इसलिए ये necessary था. एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि चाइना हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सो नॉट ओनली इन इंडिया बट चाइना में ये सबसे लार्जेस्ट उनके जियान रीजन है, तो वहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मॉग टावर है. सो दैट इज रिड्यूस पीएम 2.5 बाय 19%. ठीक है, तो अराउंड 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो कवर करता है. बट हमारा ये स्मॉलर वर्जन है कंपैरेटिवली टू द चाइना मॉडल. सो हमारा 750 मीटर्स तक ही कवर करता है ये. ठीक है, तो दीज आर द सम फैक्टर्स
तो कॉस्ट ऑफ द डिवाइस इज लाइक 7 lakhs अप टू जाता है। एंड गौतम गंभीर फॉर्म में फाउंडेशन आपको यहाँ पे चेक करना है, तो उसके फाइनेंशियल हेल्प होगी या उनके थ्रू भी ये यहाँ पे इनको इंस्टॉल किया जा रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है, लाजपत नगर में हुआ था, ट्रेडर्स एसोसिएशन वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। एंड दिस टावर विल रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सो नॉट ऑन एनी क्लीन सोर्स। तो जैसे कि सोलार यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एक्सेट्रा, सोलार इलेक्ट्रिसिटी, बट प्राइमरीली अभी देखा जाए तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो नेक्स्ट इज उसका एरिया वगैरह देख लो कि 750 मीटर्स वगैरह कवर करता है, 500 to 750 मीटर्स, एंड 2,50,000 to 6 लाख क्यूबिक मीटर एयर पर डे रिलीज फ्रेश एयर इन रिटर्न, ठीक है, तो इतनी एयर यहाँ पे फ्रेश एयर रिलीज होती है। सो दीज आर द सम फैक्चुअल पार्ट्स फॉर द स्मोक टावर, ठीक है। सो दो बोथ आर द डिफरेंट, दैट इज एंटी स्मोक गन्स आर डिफरेंट, एंड सेकंड इज द स्मोक टावर इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट इज save forest and save people on disease of animal origin. So mostly you can see कि अभी कोरोना का इशू चल रहा है, इसलिए मोस्टली ये फैक्टर यहाँ पे ऐसे बता रहा था कि जितने भी डिफरेंट वायरसेस है या पैंडेमिक वायरसेस है जो अभी वेल नोन है इन लास्ट 5 to 10 years, सो दैट आर जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन इन द फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। तो फॉरेस्ट रीजन में हम जितना एनक्रोच कर रहे हैं, so that is the most important reason behind overall outbreak of the pandemic disease. So scientific evidence, a spread of virus across the world shows the invisible process where pathogens originally found in wild animals and were later transmitted to the humans, because humans are continuously getting in contact with the wild animals, तो कहाँ पे उनका कंजम्पशन भी होता है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जो हम कंटिन्यूसली न्यूज में देख रहे हैं। सो आई विल नॉट गो इन डेप्थ ऑफ दैट पार्ट बिकॉज यहाँ पे आपको ऑलरेडी वेल नोन इन्फॉर्मेशन है सब। सो डिसीज ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक इबोला होगा, HIV है, सार्स है, मर्स हो गए, तो ये सब यहाँ पे मोस्टली, एंड सेम लाइक दिस रिसेंट COVID-19 ऑल्सो। सो ये सब रीजन यहाँ पे दिए बिकॉज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर फूड, ह्यूमन आर क्लियरिंग फॉरेस्ट ऑन अ मैसिव स्केल, the wild species which harbored virus is closer to the domestic animal and humans. So for example, Nipah virus outbreak भी हुआ था, तो वो भी उसका एक पार्ट था। Then Hendra virus एक आया था, तो अगेन फ्रूट बैट्स की वजह से ये हुआ था। कायांसुर फॉरेस्ट डिसीज, ये भी एक आपको अभी वेल नोन है कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सम ऑफ द साउथ स्टेट्स में यहाँ पे कायांसुर फॉरेस्ट डिसीज स्प्रेड हुआ है, बट ये साउथ में ही थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हुआ, इसलिए अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट डिसीजेस रिलेटेड टू दैट। सो डिफॉरेस्टेशन अ स्ट्रॉन्ग ड्राइवर ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिशन। सो वही मैंने कहा कि जितना हम एनक्रोच करेंगे फॉरेस्टेड एरिया में या डिफॉरेस्टेशन करेंगे फॉर द डेवलपमेंट पर्पज या फिर ह्यूमन सेटलमेंट पर्पज, सो दिस इज गोइंग टू द मेजर रीजन फॉर द इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिशन। So next is the what government can should learn from these. So government should stop viewing undistributed landscape as an impediment to economic growth. So this should be severe as a dire warning to the government that has the permission granted for the new road, dams, mines, and power projects, etc. So already weaken the forest and can unleash more cows. Okay, so it would do well to roll back its dilution and environmental clearance system, strengthen with a mandate to state and leave protected areas to scientific experts. So these are some of the reasons behind overall outbreak, and so that government has to take all these steps. So conclusion is that to protect national and global biosecurity, it is imperative that we protect our forest and keep forest intact. Okay? So therefore, the goal now is to deal with the trade in wildlife and deforestation, which would help in arresting future outbreaks, and also to better understand how these virus might spread and to potentially develop the vaccines. So these are the well-known reasons for you. So I will not going to be in depth of this part. So actually, you know everything about the COVID-19 because already 3 to 4 months से ये continuous outbreak हो रहा है. So sufficiently आपने ये calculate कर लिया है. एंड उसके बाद कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा एनवायरमेंटल अप्रोच के ये पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, नॉट सम ऑफ द एक्स्ट्रा अदर अप्रोचेस यहाँ पे कवर नहीं है। सो प्लीज कलेक्ट दैट अप्रोचेस ऑल्सो
So next news is the forest department comes to the rescue of the tribals. So again related to COVID-19 issue. तो जो कोविड-19 का इशू है, तो तिरुवनंतपुरम केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज बॉट द ट्राइबल प्रोडक्ट्स कलेक्टेड बाय द ट्राइबल्स पीपल्स ऑफ द अगस्थ्यवनम बायोलॉजिकल पार्क, अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क एंड द नियर पेपरा फॉरेस्ट रेंजेस. सो ये रीजन में जो भी उनके कलेक्ट हो गए फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज, तो वो कलेक्ट करके उनको वहां पे वो एरियाज में लॉकडाउन सॉर्ट करना ये जरूरी है, ठीक है, बिकॉज उनका ओवरऑल डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर डिपेंड होती है. सो द एम्बिशियस प्रोजेक्ट वनिका फॉर्मली लॉन्च बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज बीइंग अंडरटेकन बाय प्रोक्योरिंग पेरिशेबल्स अबाउट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, सो वेयर इज द अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, बिकॉज ज्यादा तो कुछ ये न्यूज में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि न्यूज में आया तो वो लोकेशन आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व का. सो अगस्त्य पीक के पास ही अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व हम लोकेटेड बोल सकते हैं, या आप थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पे डायग्राम देखते हो तो ये अगर वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे आपको दिखेगा कि दैट इज अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है. ठीक है, तो सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट. सो एग्जैक्टली कन्याकुमारी वगैरह ये उसके साउथ में. और इम्पोर्टेंट थिंग वही देखा जाए तो नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके साउथ में आता है, एंड पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था यूपीएससी का अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व. सो दीज वाइल्ड लाइफ यहाँ पे सेंचुरीज आपको देखना है, पेपारा इन द नॉर्थ एंड नेयार इन द साउथ. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. द पार्क हैज एंडेमिक मेडिसिनल प्लांट्स, रिच बायोडाइवर्सिटी, और एज यू नो कि वेस्टर्न घाट में तो वैसे एनरिच्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन भी है. सो इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. सो इट इज द एग्जैक्टली लोकेशन फैक्टर पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया. सो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है. सो उसमें से गल्फ ऑफ मन्नार ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है. तो देखो अगस्त्य मलाई यहाँ पे लोकेटेड है एकदम साउथ में केरला के. यहाँ पे अगर देखोगे केरला में जो वेस्टर्न घाट एक्सटेंडेड है, तो वहां पे आएगा अगस्त्य मलाई. सो प्लीज गो थ्रू द अगस्त्य मलाई. एग्जैक्टली उसके बाकी बायोस्फीयर रिजर्व कैसे लोकेटेड है, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन एक्सेट्रा. So next is the why in the news, the forest department forest produce collected by the tribals peoples Agastya Malay Biosphere and surrounding forest ranges to be sold commercial establishment. So उसी related था. So यूपीएससी का डायरेक्ट इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस न्यूज में अगस्त्य मलाई है. सो अगस्त्य मलाई लोकेशन फैक्टर पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है, so just only read about the location factor, that is biosphere reserve and the parts of the biosphere reserve. तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए या फिर टाइगर रिजर्व्स हो गए. ओके, सो नेक्स्ट इज पेंच टाइगर डेथ रेजेस कोविड-19 fears. So a 10-year-old ailing male tiger actually इसकी डेथ हुई थी because of the some respiratory illness. So NTCA के थ्रू जो स्टडी हुआ, organizations that manages protects of India's 3,000 old tigers is puzzled. So tested for the novel coronavirus disease. Both Central Zoo Authority and NTCA, National Tiger Conservation Authority, have issued guidelines that requires zoo to be on the highest alert and monitor animals on closest circuit camera 24/7. So जैसे हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में जैसे कोविड-19 का इशू चल रहा है, ह्यूमन लॉसेस हो रहे हैं, ह्यूमन इन्फेक्ट्स हो रहे हैं. सो सिमिलरली हमें ये भी देखना है कि कोई एनिमल्स पे इसके इम्पैक्ट हो रही है. सो रिसेंटली वही पेंच टाइगर रिजर्व में ये इशू देखा गया है कि यहाँ पे मे बी हो सकता है. ठीक है, बट बाद में इसके कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि ऐसे कोई मतलब अदर डिसीज से इन्फेक्टेड थे वो, बट नॉट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस इनपे स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, बट देखो पेंच न्यूज में आता है. सो पेंच देखो थोड़ा सा. देन एनटीसी ऑलरेडी हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है. So it is a tiger conservation authority would be required to prepare an annual report which would be laid the parliament along with the audit report. So NTCA क्या है, 2005 में हमने establish किया था, and tiger task force भी आते हैं इसके अंडर, constituted by the PM directly, and for recognize management of project tiger and the many tiger reserves in India. So इनके ऊपर एक tiger conservation authority जो है, तो उनको पूरे जो भी टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स, सो उनको रेगुलेट करना, उनपे मॉनिटर करना, उनपे प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये उनके पार्ट आते हैं. सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड
climate change. So the authority will have 8 experts होते generally इसमें, and professional having qualification and experience in wildlife conservation. So in peoples including tribal भी इसमें include हो गए. Then apart from these members, 3 members of the parliament, of whom 2 will be the elected by the house of the people. So पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं, तो उतना याद रखना बस आपको यहाँ पे कि एनटीसीए के बॉडी में. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द सेंट्रल जू अथॉरिटी भी क्या है वो देख लेना एक बार. So that is Wildlife Protection Act 1972 established the Central Zoo Authority in India. According to the Central Zoo Authority was established a statutory body है ये, ठीक है, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 1992. So 1992 में under the Wildlife Protection Act and ये statutory body है under which act, yes, Wildlife Protection Act, and इसका working entirely होगा मिनिस्ट्री के, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, एंड एस्टैब्लिश कब हुआ 1992 में. ओके, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वैसे 10 मेंबर्स एंड अ मेंबर सेक्रेटरी एक्सेट्रा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा अथॉरिटी इज इंक्लूड एनफोर्सिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर अपकीप हेल्थ केयर ऑफ एनिमल इन इंडियन जूस टू कंट्रोल मशरूमिंग एंड ऑफ अनप्लान्ड एंड इल कंसीव्ड जूस. ठीक है, सो दीज आर द सम मेजर ऑब्जेक्टिव्स. सो पेंच टाइगर रिजर्व पे आते हैं फिर से. तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे आता है? आई थिंक ये सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो देखो एमपी में आता है, एंड पेंच रिवर से ही इसको नाम दिया है, दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व. तो पेंच रिवर के आसपास आते हैं. इट इज नेम आफ्टर द पेंच रिवर. एंड एज पर द ऑल इंडियन टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट, 4th टाइगर सेंसस जो अभी रिलीज हुआ था 19 में, पेंच टाइगर रिजर्व इन एमपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया. सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स लोकेटेड है इंडिया में एज पर द टाइगर ऑल 50 टाइगर रिजर्व्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज द टाइगर कंजर्वेशन. ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पे, उसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता है? तो एनटीसीए का होगा टाइगर प्रोजेक्ट में. देन 18 का एम स्ट्रिप्स ऐप एक बार देख लो आप, कि जिसमें मॉनिटर रिकॉर्ड एंड द टाइगर पॉपुलेशन रिलीज होता है, तो उसमें एम स्ट्रिप्स का कैसे बेनिफिट लिया गया है वो एक इंपॉर्टेंट होगा. And Central Zoo Authority in New York has confirmed that a tiger has been tested positive for COVID-19. But वो है कि न्यूयॉर्क में यहाँ पे कंफर्म हुआ है कि उनको भी हो सकता है. सो इट इज गोइंग टू बी द कंसर्न कि इंडिया में मे बी ये बाद में स्प्रेड हो सकता है. नाडिया, द कोविड पॉजिटिव टाइगर इन द ब्रोंक्स जू, इज बिलीव्ड दैट टू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय असिम्प्टोमेटिक जूकीपर. ठीक है, सो मे बी हो सकता है, बट इंडिया में फिलहाल तो अभी कोई इससे इन्फेक्टेड नहीं दिख रहा है, बट अगर होता है तो ये इंडिया के लिए मेजर कंसर्न होगा. ठीक है, सो रिसेंट कुछ डेटा एक बार ओवरलुक करो. वैसे ऑलरेडी हमने ये कवर किया है सम ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में. सो दैट इज 18 में अभी रिसेंटली जो हुआ है 2967 है, इंक्रीज हुआ है, उतना याद रखो. देन उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स अगर है तो वो एमपी में है, वो आपको याद रखना है. एंड वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया में. ठीक है, सो दीज आर द सम मेजर important reasons, major important about the tiger reserve. state wise आप देख लो कि कहाँ पे कम हुआ है. आई थिंक मैंने वो ग्रुप पे शेयर किया टेलीग्राम चैनल पे कि एग्जैक्ट टाइगर के जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है तो वो कौन से स्टेट में हुआ है, तो उसकी इमेज आपको वहां पे मिल जाएगी. एंड नेक्स्ट इज द 18 में कैसे इंक्रीज हुआ है वो भी यहाँ पे दिया है. एंड सम ऑफ द वेस्टर्न घाट रीजन, शिवालिक, ये वीडियो आप स्टॉप करके रीजन वाइज उनके डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है, तो वहां पे इंक्रीज कहाँ पे वो देख सकते हो, शार्प इंक्रीज कहाँ पे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो. जैसे रेड मीन सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो यहाँ पे शार्प इंक्लाइन हुआ है, तो वो आपको याद रखना. फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड होल्ड्स वर्चुअल मीट. सो वाइल्ड लाइफ बोर्ड, National Board of Wildlife had its first ever video conferencing meet where infrastructure projects 11 कुछ स्टेट्स में जो भी क्लियरेंस के इश्यूज थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, तो वो क्लियरेंस यहाँ पे मिला है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे उतने प्रोजेक्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं हो गए, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जैक्टली क्या है वो इंपॉर्टेंट होगा. सो स्टिल आपको ये सम ऑफ द 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्रूवल हुआ है, तो वो ये यहाँ पे नागपुर मुंबई सुपर हाईवे होगा, या सम ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड, तेलंगाना. सो किसको किसको यहाँ पे परमिशन मिले है, क्लियरेंस मिला है, तो उसकी लिस्ट है यहाँ पे. एंड जस्ट गो थ्रू इट. इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट जस्ट गो थ्रू इट. ओके, सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
ये देखना हमको क्या है इम्पोर्टेंट। सो वो एक होगा कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 19 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन याद रखो, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बोर्ड for wildlife is the statutory body and its role is the advisory in nature and advises central government on framing policies measures for conservation of wildlife in the country. So ये बहुत important है कि इसका रोल कैसा है वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ का एग्जैक्ट रोल है कि दैट इज एडवाइजरी वन to frame the policies and measures for conservation of wildlife in the country. So primary function of the board is to promote conservation and development of wildlife and forest. So it has the power to review all wildlife related matters and approve the projects in the around national parks and sanctuaries also. So these are the important factors related to that. And the composition is like chaired by the PM directly. तो ये बहुत important है. National board फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। एंड इट हैज द 47 मेंबर्स इंक्लूडिंग पीएम। सो 47 मेंबर्स हो गए इसमें। अमंग दिस 19 मेंबर्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स इंक्लूड 3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोकसभा। पार्लियामेंट के हो गए जिसमें से 2 हो गए लोकसभा के एंड 1 होगा राज्यसभा का। सो 5 एनजीओज भी इसके साथ, एनजीओज एंड 10 इमिनेंट इकोलॉजिस्ट भी होते हैं, कंजर्वेशनिस्ट होते हैं एंड एनवायरमेंटलिस्ट भी होते हैं इसमें। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि कितने मेंबर्स है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें पार्लियामेंट के, लोकसभा के 2 मेंबर्स हो गए एंड राज्यसभा के बोर्ड पे 1 मेंबर होगा एंड पीएम भी हो गए। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखो, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो आई थिंक ये पार्ट 1 में हम इतना ही कवर करते हैं आज, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम सम ऑफ द डिफरेंट न्यूज देखेंगे। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आर्मी बम अटैक है, यमुना क्लीनर ड्यू टू लॉकडाउन। सो थोड़ा मैक्सिमाइज 90% न्यूज तो इस बार कोरोना रिलेटेड ही होगी, उसके इम्पैक्ट्स क्या है या फिर उसके बेनिफिट्स क्या हुए एनवायरमेंट को, सो उसी रिलेटेड होगी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।